ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਛੁਪੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਨੀਮ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਨੀਮ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਚੂਨੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਯਾਤੋ ਫਾਤਿਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਪੱਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ जगह पे, हमें ना मरज़ई वाला लफ्ज अच्छा नहीं लगता है, तो अगर अहमदी कह लिया जाए जो हम अपने लिए कहलवाना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये जो लफ्जों के तानो तशनी ये चीजें ना हमें फिर वो हम बैठना हमारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं। ये तो लिखा हुआ है आपके लिटरेचर में कि मिर्जा, ये तो बड़ा किया है राज, मैं सुन लो, किया है राज जिसने, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे सुन पे लो, किया है राज तश्तज़बाम जिसने ईसवियत का, यही वो हैं, यही वो हैं, यही हैं पक्के मिर्जाई। पक्के मिर्जाई है लिखे है मीर कासिम अली ने, तो नहीं पसंद है, लेकिन हम दोस्त मोहम्मद शाह साहब ने भी लिखा है कि मिर्जा लफज जो है ना वो बड़ा मोहब्बत वाला लफज है। हम भी पसंद ये करते हैं कि आप हमें अहमदी कह लें, जैसे हुसैनी साहब कहते हैं अहमदी कहते हैं, हम मोहब्बत वाला लफज ही कहेंगे जो मोहब्बत वाला लफज। और ये अद्दे मरज़ाई होना, ये होना। अच्छा मेरी गल ते तुसां राह च ही, अच्छा मेरी गल ते उनकी बात पूरी होने दे, फिर मैंने भी एक बात करनी है। ਜਦੋਂ तुसां अपना नाम बदल लिया तो तुसीं उंज कह दिओ भी ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ। उसकी रीजन की एक उसकी रीजन की जिन्हां दे मुतल्लिक मिर्जा साहब ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਅਸਲੁਹਾ ਸਾਬਿਤੁਮ ਵਫਰੁਹਾ ਫਿਸ ਸਮਾ। वो मीर अब्बास ही, वो मीर अब्बास, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, नहीं ये मीर कासिम अली और ने, मीर अब्बास ही जिन्होंने दूसरे नंबर से बहस की थी। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ हाँ जी ਹੈ। सर। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਆਈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਖਤੂਤ ਸਨ? ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਖਤੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਲਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਤੋ ਫਾਤਿਹ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਪਿਆ ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਹੈ, आपका दर्जा है यहाँ पर, वो मंदा नहीं। अच्छा वो बिल आखिर मनिया कदू है उसको। अच्छा ठीक है, को आप अच्छा ठीक है जनाब, सर गल ते मुका लेंदे करो, बस थोड़ी जी रह गई। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं निकलता लफ्ज। आप आखिर वो पर्दा उतरिया जदों मिनारतुल मसीह दी बुनियाद रखी गई ना सैनी साहब जी, उस बंदे रखी हाँ जी, उस बंदे रखी है जदों ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ हाँ, ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹਿਰੇਨ ਤੋਂ। अच्छा, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਮਿਨਾਰਤੁਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। वो इट से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने रखी थी, ਰੱਖੀ ਤੇ ना और भी कई बंदे मगरिब की तरफ उसको ईंट रखी थी। ਆਹੋ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸਭ ਦਾ। अच्छा हुसैनी साहब, ये मुझे एक बड़ी खूबसूरत, अब हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह चाचना शरीफ वाले, उनकी एक तहरीर है बरूज के मतलब हम अक्सर बात करते हैं ना, तो उसके मतलब उनकी बड़ी खूबसूरत तहरीर है, छोटी सी है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं। वो मैं आप बरूज ये है कि एक रूह दूसरे अकमल रूह से फैज़ान हासिल करती है, जब उस पर तजल्लियात का फैज़ान होता है तो वो उसका मजहर बन जाती है और कहती है कि वो मैं हूँ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारज़ हैं। पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम में बरूज़ किया
اور پہلے کتب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، دوسری بار حضرت شیش علیہ السلام میں بروز کیا۔ اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات علیہ السلام علیہم میں بروز فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد عنصری سے تعلق پیدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرۂ نبوت کو ختم کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر میں بروز فرمایا، پھر حضرت عثمان میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت علی میں بروز فرمایا، اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں بھی نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام میں بروز فرماویں گے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء کتب مدار ہوئے ہیں، تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے۔ پس یہاں دو روح ہوتے ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے، اور دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فی ہے اور مظہر ہے۔ مقابیس المجالس اشارات افریدی 111 112 صفحہ۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں اور ان کے بروز ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور عامر صاحب میرا ایک کویشچن ہے آپ سے، مختصر سا جواب اگر آپ چاہیں تو دے دیں۔ اگر مرزا صاحب کی ساری کتابیں ہم آپ کو پروو کر دیں یہ بالکل سچی ہیں، تو کیا آپ پھر بھی بلیو کریں گے کہ کیا نام ہے ان کو نبی مان لیں گے، یا کہیں گے کہ بس ختم نبوت ہو چکی ہے؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، کمال ہے یار، آج آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ طبیعت شش کر اٹھی پھٹے چک چھڈے ہے، پھٹے چک دیتے ہیں۔ میں کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا۔ میں نے عامر، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ پیارا سا جواب بھی سن لیں۔ ذرا سا ایک منٹ مجھے ایک دو لفظ کہنے دیں جواب تو میں نے عامر صاحب ہاں انہیں جواب وہی دیں گے، میں تو صرف اس سے پلیز آپ وہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں یہی نہیں ختم نہیں ہوگا۔ سینسر کو بولی ذرا سوال دوبارہ احمد بھائی ریپیٹ کریں، مجھے نہیں سمجھ میں نے آیا۔ کہا کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں ساری کی ساری اگر یہ ہم ان کو پروف کر دیں کہ وہ سچی ہیں، ان میں جو سارے جو ان کو شبہات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ ختم نبوت جو ہے وہ جو ہم مانتے ہیں وہ والی ختم نبوت مان لیں گے؟ یہ والی ابھی آپ نے سوال کو وہ تو ہم نہیں مانتے، تو آپ وہ کیسے مان لیں گے؟ بدل دیا آپ نے، پہلے جو بات کہی تھی وہ زیادہ اچھی تھی کہ کیا آپ پھر مرزا صاحب کو نبی مان لیں گے؟ مان لیں گے؟ ہاں، بڑا بہت ہی دلچسپ سوال ہے، مزے لینے والا ہے، بار بار سننے والا ہے۔ جی مرزا صاحب نے خود کو نبی نہیں ماننا، لیکن یہ مان لیں گے۔ بہت کمال کا سوال ہے۔ بات یہ ہے جس طرح کا بھی انہوں نے کہا حضرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیسا؟ جو بھی انہوں نے اپنا نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ ہے وہی سمجھ لیں۔ میں نے سٹیٹس کہہ لو جو مرزا صاحب نے اپنا سٹیٹس پیش کیتا انہوں ایسا ان کو امام مہدی مان لو گے؟ طارق صاحب I am going, I cannot debate here. I am very sorry. Sorry to say you, sir. طارق صاحب leaving. Please continue. عامر نذیر صاحب آپ نے سوال سن لیا؟ ہاں جی سوال سن لیا تے تسی مینوں جواب نہیں دین دتا۔ میں انہوں نے پوچھنا چاہندا سی کہ اگر میں دو خدا تواڈے سامنے لیا کے کھلار دواں تے دوویں بیک زبان ہو کے آکھن کہ مرزا صاحب غلط نے، تے پھر تسی غلط مان لو دے؟ یعنی خدا مجسم ہو جائے گا تہاڈے مطابق؟ مطلب ہے پھر اے جڑی ناممکن گل ہے او دے اتے مفروضے اتے سوال کرنا کہ جس طرح پہ کہندے نے کہ مرزا صاحب دیاں ساریاں کتاباں سچیاں ثابت کر دتیاں جان، اگر ساریاں کتاباں سچیاں ثابت کر دتیاں جان تے انہاں دے وچ جنیاں گلاں نوں میں غلط مننا یا جنہاں نوں میں خلاف حقیقت دیکھنا وا، تے پھر میں مطلب ایویں اکھاں نیاں کر لیاں نے 960 یورو دی میرے اکھاں تے اینک لگی ہے۔ وہ کیوں لگی ہے؟ مرزا صاحب دیاں کتاباں پڑھ پڑھ کے لگی سر، تے جڑیاں چیزاں میں انہاں دیکھیاں ابو جہل کی آنکھوں پہ 2000 واٹ کی اینک لگی ہوئی تھی، تو یہ نہ کہیں کہ یہ پاسبل نہیں، پاسبلٹی ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ कि अबू गुस्ताखी जैसे करते हो। मिला रहे हैं ना राना साहब, क्या गलत कहा है? यही होता है ना, आगे से फिर जवाब ऐसे ही मिलता है। मैंने क्या गलत कहा है? आपने एक मिसाल दी, मैंने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ मैंने ਤੇ तो ਤੁਸੀਂ नहीं ਚੀਕਾਂ कहा, मैंने ਮਾਰਨੀਆਂ। कब कहा नज़ीर साहब है? मैंने तो मिसाल दी है। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂਗਾ। आप दें, आपको नहीं देते आमन सुनाने। नज़ीर साहब, आमन नज़ीर साहब ने गलती की थी, इतने बार्डर ते आके बरेले फिल्मां ने 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਐਨਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਐਨਕ ਤੇ 2-3-400 ਯੂਰੋ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किताब का सच्चा झूठा होना और खुदा का आगे गवाही देना, आप अकल का बात करें, इस चीज को आप एक को अकली दलील दें, एक ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ किसी ਦੋ ਖੁਦਾ किताब को मानना नामुमकिन नहीं है। सवाल करके किताब गए का आना हैं नामुमकिन ਉਹਦੇ है। ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ हुसैनी ਗਏ। साहब एक मिनट, हुसैनी साहब आप बीच में दखल ना दें। अगर कोई मैं तो तीन बोलूं तो आप अब महफिल पखेगी। हाँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, छोटी सी बात, कि आप दो खुदाओं का आके गवाही देना एक नामुमकिन बात है, सबको पता है। लेकिन कोई किताबें सच्ची भी साबित हो सकती हैं, झूठी भी साबित हो सकती हैं। ये उन्होंने नामुमकिन यही नहीं बयान है। किया ना, जिस हजरत तरह अबू दो बकर खुदा रजी नहीं अल्लाह हो ताला- सकते, इतना ही हजरत- नामुमकिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने इस्लाम के मुखालिफ थे, और वो चलो, फिर वो दिल मुसाफ चेंज हो है। गया उनका, दिल चेंज हो गया इस्लामी तारीख में है कि राणा सच्चाई साहब को मान तुझे लिया। हार्ट अटैक करा के जाने लगता है। हाँ, तो मैं एक अकली आपको दलील दे रहा हूँ मेरे भाइयों, कि ये दो खुदाओं की मिसाल और किताबों को सच्चा झूठा नहीं बैठती नहीं है। एप्पल और मैंगो का आपस में नहीं मुकाबला हो सकता। बाकी मैं उनके लिए आपकी- बैठती है ना, अब वो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ अमन एक अजीज मिनट साहब, राशिद राणा साहब, आपकी शख्सियत में कोई मैं बुराई नहीं, मैं कुछ कह रहा, बुरा नहीं कह ਰਾਸ਼ਿਦ रहा। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਚ और मैं ਰਾਹਤ सुनूंगा महसूस आपका ਕਰਦੇ ਹੋ। पॉइंट जी, मैं सुन रहा हूँ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 200 ਝੂਠ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 200 ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫੜੀ। किसने लिखी ਮੈਂ है? ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। छोटे छोटे जवाब दे दें, किसने लिखी है? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ आपने है कि लिखी है तो सुन वो के लो। शातिम रसूल था, औज़ बिल्लाहि मिनश गंदा शैतानिर इंसान था एक। साहब यार अगले की बात तो सुन लिया करें आप। साथ साथ जवाब भी ले लेना। यार मैं एक ना, फिक्र ना, हो ना, गया, ना, पूरी हो गया। सवाल अभी उनका पूरा नहीं ना हुआ। मेरे एक जिस फिक्र बंदे को ਤੁਹਾਡਾ ने- ਜਵਾब लाजमी आ गया। रंगीला रसूल लिखी थी, क्या वो दुरुस्त लिखी थी? हेलो अब भाई, देखो ये पंगा ले रहा है, इन्हों हार्ट अटैक होना ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ की ਬਹਾ है, ਦਿਓ। की है, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ की है। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ सब ਮੇਰੀ ਗੱਲ इतराज़ात में रसूल ਰਾਣਾ पाक की ਸਾਹਿਬ तहरीरें ਰਾਣਾ पेश ਸਾਹਿਬ की हैं ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। उन्होंने। छोटे छोटे ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਦੀ ਮਊਦ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ 2000 ਯੂਰੋ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ 300 ਯੂਰੋ ਹਾਰ आप ਕੇ ਗਿਆ। टॉपिक से ना ਸਾਰੇ दूरिए, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ प्लीज। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ टॉपिक ਕੋਈ से ਹਦੀਸ दूर मत ਐਸੀ। जाएं, मेरे साथ बात करें, टॉपिक से आगे ना जाएं। ਟੌਪਿਕ पे ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਝੂਠ टॉपिक ਬੋਲਿਆ ये है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਦਿਓਗੇ। आपने मेरी बात सुनो, आपने ये कहा कि मेरे पास 200 झूठ लिखे हुए हैं जी हाँ। मिर्जा साहब के। आपके 200 झूठ लिखने से साबित नहीं होता। साबित कब होगा? जब उन्होंने आप किताब पेश चुन। करेंगे। उन्होंने किताब जब चुन। नहीं, साबित कैसे होगा? हम एक माहौल में बैठेंगे, उसमें आप उसको इतराज करेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, लोग फैसला करेंगे। साबित कभी नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुरान पाक पर भी इतराजात हुए, रसूल पाक पर भी, क्या हम मान लें उसको? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ हाँ, ਮੰਨ बड़ी ਲਓ ਜਾਂ मर्जी ਨਾ है। ਮੰਨ ਲਓ, तो ਲੇਕਿਨ ये भी ਸਾਨੂੰ आपके ਮੇਰੀ ਗੱਲ 200 ਸੁਣੋ ਨਾ। झूठ ये मैं ऐसे फाड़ करना, ये बाहर समुद्र में फेंक रहा हूँ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 300 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਗਏ मुझे ਨੇ। नहीं पता, मैं शर्तें लगाने के खिलाफ हूँ। ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਰਿਕ ਸਵਾਲ ਖਾਨ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਰੀਅਲ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਾਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਹਫੀਜ਼ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। हफीज शेख साहब है ने? नहीं, उन्होंने कमेंट किया है कि लाहौरी अहमदी मिर्जा साहब की सारी किताबों को मानते हैं मगर उनको नबी नहीं मानते, फिर उसका क्या करना? नहीं ये तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ? सैनी साहब उन्होंने सवाल पता क्या करके अहमद गए साहब ने? ने उन्होंने कैसी अगर दुहराओ सवाल अहमद साहब ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? सैनी साहब उन्होंने सवाल ये था, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ सारियां किताबां किताबें सच्ची साबित कर दी। नहीं ये नहीं है सवाल, यही तो हर दफा किसी मिर्जाई में जरूरत ही नहीं है कि वो सही ਤੁਸੀਂ सवाल ਸਾਨੂੰ सच्चा किसे सच्चा जब सवाल भी करें, कोई किसे सवाल जब भी थोड़ा ही कोई इलाज है, जरूरत थोड़ा ही नहीं है। इलाज। ले आया ये कि जो अल्लामा जब भी है साहब ना, इनको भी कोई जरूरत नहीं साहब एक मिनट म्यूट लाया जी। सैन साहब उन्होंने सवाल ये आया कि उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब अगर ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ये ਦਿਓ। गलत है। ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ सैनी ਚਲੋ साहब ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਵਾਲ ਪਤਾ जो भी नबी की डेफिनेशन वही था। ਹੁਣ ਗੱਲ अगर ਇਹ सवाल ਹੈ, भी ना याद हो तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ फिर ਇੱਥੋਂ जाहिर है जवाब ਚੱਲਾਂਗੇ। भी कैसे होगा? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੱਲ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। हर ब्रॉड से ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ही नहीं। एक मिनट हुसैनी भाई जवाब दे, सच अपने दिल को हाजिर नाजर जान। हाँ जी? क्या वो सच्चा मानते हैं या इतराज करने के लिए लाते जो हैं? मुझे लिखा ये हुआ बताएं। है, जो लिखा हुआ है उसको सच्चा मानते मुझे हैं कि बताएं, तारीख यहाँ में- मसीही लोग आते हैं, कुरान पाक की आयतें पेश करते हैं, क्या वो उसको सच्चाई को मानते हैं या हम पे इतराज करने के लिए आते हैं? मैं अर्ज कर सच्ची रहा बात हूँ, कीजिए हुसैनी भाई उनका प्लीज। उनका जो सवाल है ना, हम उसके साथ रहेंगे, नई बातें नहीं ऐड करेंगे। ठीक है ना, पहली करें बात करें, ये करें। है कि इन्होंने उनकी किताबों को असल नहीं है, किसी और ने लिख दी हैं, बना दी हैं। मिर्जा साहब की किताबें मिर्जा साहब की ही किताबें हैं। उसको ये कहना कि ये उनकी किताबें नहीं है, ये गलत बात है। अब उनको सच्चा साबित करना, जब है ही उनकी तो सच्ची हैं, उनकी किताबें ही हैं। बिल्कुल। ये अब गलत बात। उन्होंने सच्चाई का मतलब है उन अब पे अगली ईमान बात रखना। ये- अगली बात ये कि मारो हुसैनी साहब तोड़ो घुटना, या पता नहीं मारो घुटना तो टूटे आंख। तो वो सैनी साहब मेरा नबी- ख्याल है वो ये कहना चाह रहे थे अहमद साहब कि अगर जो कुछ इन किताबों में, कहना ये चाह रहे थे, गलत कह गए कि जो कुछ इन किताबों में लिखा है अगर उनको हम सही साबित कर दें, तो शायद वो कहना चाह रहे थे, वो गलती से क्या गया किताबों को प्रूफ, इस तरह कुछ होगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं ਸਵਾਲ सवाल ही गलत है ना हुसैनी साहब, उस तरह उन्होंने देख के सिखाना चाहते थे। करो, या नहीं है कि मैं अलामा साहब तो ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੰਜ ਸਮਝੋ। सैनी साहब सवाल को सेंसर कर रहे हैं। वो सैनी साहब को तो सवाल की तुक नहीं बांट रही ना, वो जो कह रहे हैं। सैनी साहब वो दोबारा आने तो पूछ लांगे लामा साहब मौजूद हो? हाँ जी मौजूद। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤਾਉਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਉਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी बड़े बंदे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਲਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇੰਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਕਰੀਬੀ ਕਾਦੀਆਨ ਲੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ 313 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ
ਤਾਉਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਖਤਗਾਹ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ का ये ਤਖਤਗਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਗਾਹ ਸੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ 313 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਉਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਤੇ ਆਵਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਉਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਲੰਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾउन कादियान में पूरे जोर पर थे, बड़े बंदे मारे, वो बच गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਲ ਬਦਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ, ਅਲ ਬਦਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਦਿਲੋਂ, ਢਿੱਡੋਂ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਅਫਜ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਹਰਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖਲਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਉਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। सच्चा नहीं हूँ, हाँ ठीक है। नहीं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया था कि अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं ताउन से, तो ये ऐसे ही है जैसे जंग बदर और जो जंगें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी, उसमें मुसलमानों की भी जान भी जाती थी। तो इसमें अगर कोई एक आधा इधर से भी मर जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं। और नहीं तारिक साहब, आजाद के लिहाज से वो जो दूसरे लोग से मिर्जा साहब ने कीते है भाई, 2 दरानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਦਾ ਧੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੂੰ ਟਾਲ ਦੇਗੇ। ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। वो जाहिल मुखालफिन तो तुसी हो ना मिर्जा साहब दे, और आमिर नदीर भी है। वो कादर खुदा कादियान को ताउन की तबाही से महफूज रखेगा, ताकि तुम समझो कि कादियान इसीलिए महफूज रखी गई कि वो खुदा का रसूल और फरस्तादा कादियान में था। खुदा ताला बहरहाल जब तक ताउन दुनिया में रहेगी, गो 70 बरस तक रहे, कादियान को इसकी खौफनाक तबाही से महफूज रखेगा, क्योंकि ये उसके रसूल था। किताब दा हवाला पढ़ रहे जी अमन नज़ीर साहब, दाफिउल बलाया जी, लिखी ताउन दे उत्ते वे। लो जी दावा लब गया मिर्जा साहब दा। कादियान के चारों तरफ 2-2 मील के फासले पर ताउन का जोर हो रहा है, मगर कादियान ताउन से पाक है, बल्कि आज तक जो शख्स ताउन ज़दा बाहर से कादियान में आया वो भी अच्छा हो गया। माशाअल्लाह। लेकिन अलामा साहब मैं सुनिया कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ हाँ जी, बाग दे विच जाके खैमा ला लिया सी। खुदा ऐसा नहीं कि कादियान के लोगों को अज़ाब दे, हालांकि तू उनमें रहता है। वो इस गांव को ताउन की दस्तबर्द और इसकी तबाही से बचा लेगा। अगर तेरा पास मुझे ना होता और तेरा कराम मद्देनजर ना होता तो मैं इस गांव को हलाक कर देता। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آول قریہ. خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس بلائے طاعون کو ہرگز دور نہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کر لیں جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی جدوں تک مرزا صاحب نو مان نہیں لیندے. حسینی صاحب تھلے آئے بڑے علمی دوست نے لگتا ہے ایم حسن صاحب گل کرنا چاہتے نے. وہ کہندے نے کال پر لیں حسینی صاحب اوے نے، وہ ہلے نہیں لے سکتے کال تے، وہ آندے نے واپس تے پھر تانوں موقع دینے آ. ضرور تشریف لے آئے سارے دوستاں نوں جی. آداب، السلام علیکم. حسینی صاحب نو ریفرنس دینا سی، یہ جناب الحکم اخبار 24 مارچ 1905 دا جدوں باؤ محمد افضل ایڈیٹر البدر دی وفات ہوئی جناب، وہ خبر آئی. کیڑے سن چاہیے جی؟ 1905 24 مارچ چیتا رکھیا جے حسینی صاحب پانچ تے انہاں نے ڈیٹ دس آگے نے آگے نے صاحب بھائی بشیر الدین محمود احمد صاحب دے دور چ رہے نے. میں کہ نہیں، مرزا صاحب دے دور چ 24 مارچ 1905 چ الحکم اخبار کھولو گے تے پہلے صفحے تے ہی بابو محمد افضل ایڈیٹر دی موت دی خبر چھپی ہے. حسینی اچھا صاحب جی، آگے نے حسینی صاحب ٹروتھ سرچر صاحب ہی نے تے ایم حسن صاحب جدوں یہ مرے نے نا بندے تے پھر کشتی نوچ مرزا صاحب نے جی. لکھیا کہ السلام ایسے علیکم. لوگ کی لکھے کشتی نوچ؟ ایسے لوگ ان میں سے جو اپنے عہد پر پورے طرح پر قائم نہیں یا ان کی نسبت اور کوئی وجہ مخفی ہو جو خدا کے علم میں ہو، ان پر طاعون وارد ہو سکتی ہے. چلو ہاں، مخفی وجہ بھی ہوندی ہے. مخفی بھی مخفی اے مخفی نہیں کرنا چاہتا. احمد جی صاحب وہ بیچارے نے کوئی رحم کرو، وہ اج اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی انہوں دے خلاف فیصلہ دیتا ہے. انجینئر صاحب آج ہی تو نہیں دیتا، ان تو 3-4 دن ہو گئے نے. ہاں پرانی گل ہے وہ آدم صاحب، پرانی گل ہے. تلے کے دوست آئے نے حسن صاحب، تلے میسج بھی دیکھ رہے نے. اسلام تعالی میں نویں دوست ہی نے. السلام علیکم ایم حسن صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی تھا اور بادشاہ کھڑا تھا راستے میں، بادشاہ اور وزیر، اور وہ گھوڑی بیچنے جا رہا تھا. تو بادشاہ اور وزیر نے پوچھا کہ یہ گھوڑی کتنے کی ہے، تو اس نے اس کا جو ہے نا ریٹ بہت زیادہ مانگ لیا، پیسے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس گھوڑی میں کیا ایسی خاصیت ہے؟ تو اس نے بولا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے نا جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے. تو وزیر صاحب نے پوچھا کہ ٹھیک ہے بھائی میں بیٹھنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر بیٹھنے کی یہ پہلے شرط ہے کہ وہ آدمی جو بے ایمان نہ ہو اس کو مکہ اور مدینہ نظر آئے گا. ابھی وزیر صاحب اس کے اوپر بیٹھ گئے، ابھی کیسے کہیں اس کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں سبحان اللہ مجھے تو مکہ نظر آ رہا ہے. تو مرزا صاحب کی بھی وہی پہلیاں تھی کہ جو مر گیا ابھی اس سے کون پوچھے گا کہ بھائی تو منافق تھا یا سچا تھا. یہ آپ کا خیال ہے، آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑی ہے، کوئی بات بنی نہیں ہے آپ سے. ویسے طارق چوہان صاحب ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ دیکھیں نا، اس طرح کے اعتراضات تو تمام انبیاء پر ہوتے رہے ہیں. تو جو بھی اب عیسائیوں کو دیکھو کتنے اعتراضات کرتے ہیں، تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہی ہم یہی کہیں گے موجہ کر پائی. بھائی آپ نے یہ دافل بلا پڑھی ہے محمد حسن صاحب؟ محمد حسن صاحب جی جی آپ نے دافل بلا پڑھی ہے کتاب؟ نہیں میں نے یہ نہیں پڑھی، میں نے مرزا صاحب کی بہت ساری تحریریں پڑھی ہوئی ہیں جس کا پورا 4 صفحے کتاب پڑھی ہوگی پوری مرزا صاحب کی؟ کتاب پوری پڑھی ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف پرچیاں پڑھی. سن تو لیں. آپ کو پتہ ہے یہ طاعون والا کیا معاملہ تھا؟ اس کی کہاں پہ درج ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ طاعون والا کیا معاملہ تھا، کہاں پہ درج ہے یہ، اس کا کیا حوالہ ہے، کیا اصل بات تھی کیا؟
सर जी मैं सुन रहा था जो वो कह रहे थे कि भाई जो मर गया वो जो है जो ये कहाँ से सुना है आपने ये? सुनने तो सही ना, वो नहीं मरेगा, बाकी के जो है मर जाएंगे। आपकी बात तो आ गई है, अभी आपने अभी सुना है आपने ताजा ये भी जो दोस्त बयान कर रहे थे। जो आदमी मर गया अब उससे कौन पूछेगा कि भाई तुम सच्चे मिर्जा साहब के थे या झूठे थे? मैंने यही कह रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा है कोई चीज, ये कोई हवाला, ये पूरा कोई सफा पढ़ा है एक दाफिल बला का? सर जी मैंने पढ़े हुए हैं, कहीं पे कहता है कि भाई हदीस से साबित है कि इधर जहाँ पे बीमारी हो वहां से आगे, सुने तो सही ना, वहां पे नहीं जाना, नबी करीम की हदीस है। फिर उसी के खिलाफ बातें मिर्जा साहब की लिखी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने ये दाफिल बला पढ़ी है या सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? अभी सुनी है, कुछ पहले सुनी है? सर जी आप कोई तहरीर उठाएं मिर्जा साहब की, सुने तो सही ना, मिर्जा साहब की कोई तहरीर उठाएं, 4 सफ़े पढ़ें, उसके बाद मिर्जा साहब का दावा बताएं कि है क्या, बता सकते हैं? आपके पास है कोई तहरीर? दिखाएं, बता देते हैं। जी कौन मैं सी बता रहा किताब हूँ, पढ़ी है आपने मिर्जा साहब की? सुने तो सही, मैं आपको मिर्जा साहब मोहम्मद का हुसैन यार ये साहब तो जो हर है ना, बात के बाद कह देते हो सुने तो सही। मैं आसान सवाल करता शिकार, हूँ, वो शुरू आप वहां से करते हैं, सुने तो सही, आसान सुने तो सही। शिकार, आसान शिकार तलाश कर दो मोहम्मद हुसैन साहब। नहीं आसान नहीं, वो दोस्त ने आगे लतीफा सुनाया तो मैं ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि दोस्त ने कुछ पढ़िਆ भी है, कोई पता भी है कि नहीं सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਗਏ? ਦਾਖਿਲ ਬਲਾ ਚ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਾਉਨ ਆ ਜਾਓ तो दौड़ जाओ, ਇਲਾਕਾ छोड़ दो, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ 4 सफ़े ये हसन भाई किसी भी किताब में से हो? आपने ये किताब पढ़ी है, कोई नाम पता है कोई 2-3 किताबों का? सर जी मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे उसका मैं नहीं बता दें कि मिर्जा साहब ने क्या कहा। मैं हवाला सुनिए तो देखता हूँ, सही। आपको 2-3 किताबों के नाम आता है मिर्जा साहब की, 2-3 किताबों का? मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मेरे पास फिर वही बात, स्क्रीनशॉट मैं कोई बात पूछता हूँ, जवाब कोई दे रहे हैं 2300 आप। से ज्यादा स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं जिनकी समझ भी नहीं आती कि इसके में लिखा हुआ क्या है, और मिर्जा साहब का कहने का दिल क्या कह रहा है। पर्चियां इकट्ठियां करके आया है बेचारा। भाई आपको किसने कहा आप मिर्जा साहब को माने, और आपको किसने कहा उनकी किताबें पढ़ें? ना पढ़ा करें जब अगर आपको पसंद ही नहीं है तो। ऐसे ही आप अपना सर कपाते रहते हैं। आप आले हजरत की किताबें पढ़ा करें। तारिक चौहान साहब आपसे सवाल है मेरा। हसन साहब नहीं तो दाफिल आपको बला किसने के, कहा आप पढ़ें किताबें? हसन साहब दाफिल बला किताब के 2 सफ़े ही खोले ना, तीसरे सफ़े पे मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान में हसूर इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उनके बारे में इस तरह के किस्से मशहूर थे कि भाई फ़ाहिशा औरत से तेल मलवाना और उसका जो बुरे बुरे किस्से थे उनके, शराब वगैरह पीने के, इस वजह से कुरान ने उनको हसूर नहीं कहा। दाफिल बला के 3 सफ़े पर ये बात लिखी हुई है। ये मुनकर जो है आशियाराई कर रहा है, यहाँ में नजीर साहब मुनकर है, उनके पास भाई ने सुन लिया भाई, अब आपने याद रखना है, ये पढ़ के आना है। नहीं कोई नहीं आशियाराई की, नहीं अभी कोई बात नहीं है आशियाराई का। साहब आशियाराई की थी मैं है कि वो शराब की जो आपने वर्ड्स कहे हैं, जो भी किस्से हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में चेक कर लेते हैं कौन कौन सा किस्सा है। नहीं वो बात नहीं ठहर जाओ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੋਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨੇ ਇਲਾਜ। मेरे को आसान टारगेट में शिकार कर लिया। जी हसन साहब को मौका दे देना। एक मिनट हसन साहब ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਖਿਲ ਬਲਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। 2 बंदों की बात होने दे, हम सुनते हैं। ਆਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਹਸੂਰ क्यों नहीं कुरान ने किया है, उन्हें चेक कर लेंगे। एक सेकंड आपने कहा है कि अभी चेक कर लेना, मैंने आशियाराई मुनकर ने आशियाराई की है कि मिर्जा साहब ने खुद भाई देखने आए भी मिर्जा साहब के बारे में आपने कहा है कि मिर्जा साहब ने आशियाराई की थी, ये कि मुनकर ने आशियाराई की थी, चेक कर लेना। एक सेकंड अंकल मैं कह रहा हूँ कि आपने हाशियाराई किया है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कहा है कि वो नाउज़ बिल्लाह शराब के बारे में जो आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा ना, वो हाशियाराई की है। वो अच्छा टॉर्च साहब, किसी सच्चे नबी को गालियां देने वाला कौन होता है? ठहर जल्दी ना करो हसन साहब, तुसी जल्दी ना करो, तुसी ना जल्दी करो। ये देखिए जी, एक मिनट ये मिर्जा साहब मुनकर थे, मिर्जा साहब मुनकर थे।
उन्होंने कभी भी अंबिया के बारे में कभी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ईसा इब्न मरियम ये अंबिया नहीं है क्या? कभी उन्होंने ईसा इब्न मरियम के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो इनका ईसाइयों का कॉन्सेप्ट है ना, मसीह वो जो है जीसस का, ठीक है, वो ईसाइयों का जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो अल्फाज मिर्जा साहब की किताबों से जीसस दिखा सकते हैं मुझे? और भाई सुन ले, उनकी किताबों में जो उन्होंने अपने जीसस के बारे में लिखा हुआ है ना, वो बातें उनके सामने रखी थी और वही बात। अगर किसी नाम मानने वाले ने गलत लिखा हुआ है तो क्या आप अपनी किताब में लिख देंगे वही बातें? वो उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है ना जीसस का, वो उनके सामने रखा था। सर जी मेरी बात सुने, एक आदमी नहीं मानता एक नबी को, दूसरा आदमी मानता है उनको सच्चा। क्या जो उस ना मानने वाले ने बात लिखी है क्या वो मानने वाला? जब ईसाइयों से बात करेंगे तो बाइबल के मतलब की बात करेंगे ना, जो उनका बाइबल में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है, उसी के मतलब बात करेंगे ना। तारिक खान साहब कहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि नऊजुबिल्लाह? और भाई तुम्हें बैठ के यहाँ पे अब क्लास तुम्हारी ले, कहाँ लिखा हुआ? मोहम्मद हसन भाई मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। ये अलामा साहब है, अहमद नजीर साहब ने बात करने दे तो लिखा हुआ सारा। तारक भाई टाइम दो तो सीखो अलामा साहब। इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर। आमिर नजीर अंकल किस चीज का हवाला दे रहे हैं? 220 सफा जिल्द 18 सुन लें। बात किस पे हो रही है, किस टॉपिक पे? हाँ मैं वही जो आपने मुझे कहा मुनकर ने हाशिया राय की, मैं बताने लगा हूँ। मुनकर ने हाशिया राय की कि आपके मिर्जा साहब ने हाशिया राय की। सुन लेते हैं ना, इंसान जब हया सुन पहले बात की क्या है मुझे पहले ये आपने कहा है मुनकर ने सुन ले, रूहानी खजान का वाल है, आप घबराते क्यों? टॉपिक तो पता चले ना। आपने कहा है कि मुनशिर हाशिया वो जो ताउन की जो पेशेंट थी उससे भाग रहा है वो। अब पहले ये देख लेना, जो मैंने ईसा अलैहि सलाम के बारे में बात कही है, ये मिर्जा साहब ने लिखी है कि मैंने झूठ बोला है, हाशिया राय की है। कहते हैं मिर्जा साहब के इंसान की पेशेंट को है, मैंने तो जो बात की है मेरी किस आपने जो मुझे कहा है ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या कहा? आपने कहा है कि मुनकर हाशिया राय कर रहा है। सुन लो अल्फाज मिर्जा साहब। मैंने कहा है कि मुनकर हाशिया राय कर रहा है क्योंकि आपने हजरत मसीह मौद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कहा था, नाउज़ुबिल्लाह, शराब के बारे में, कि वो खुद ये काम करते थे। ये आपने अभी एक स्टेटमेंट दी थी और जो कुछ मैंने कहा है वो भी रिकॉर्डेड है। सुन लो, टाउन के बारे में हाशिया राय की थी। अच्छा सुन लो ना, बस सुन लो ना, अभी पता लग जाता है कि ये मैंने अपने पास से कहा था या आपके मिर्जा साहब ने कहा। क्या कर रहे हैं? सुन तो लो ना, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे। कोशिश क्या कर रहे हैं आप? मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मिर्जा साहब ने ईसा अलैहि सलाम को गाली दी है। लामा साहब से बड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाम क्योंकि वो शराब। सुन लो, और झूठ बोलना शुरू कर दिया ना। हाँ अगर झूठ हुआ, मैंने बोला हुआ तो सारे तो टाउन से भाग रहे हो। आप अगर सुनोगे तो टाउन से भाग रहे हो। बेटा सुन तो लो ना खामोशी से। बेटा बात अपने मसीह मौत की भी नहीं बात सुनोगे, उसको ले सलाम ले सलात कह रहे हो। अंकल टाउन से जिसको ले सलाम कह रहे हो बेटा, उसकी तहरीर तो सुन लो। अंकल मेरी कानों में डलने दो बेटा। टाउन से बात अपने मसीह मौत की कानों में डलने दो। उसको ले सलाम कह रहे हो, उसकी बात तो सुनो। टाउन से मेरी बात तो सुन ले। अब बात तो सुन लो ना भाई। जो जिसको बंदा ले सलाम कहे उसकी तहरीर से बंदा ऐसे भागता है। तो उनको भी देखते हैं, तो उनको भी तो उनकी दरिया पहले ईसा अलैहिस्सलाम की जो इक्का दुक्का के अलावा पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है तुम्हारे मौद ने, वो तो सुन लो ना बेटा। और गवर्नमेंट जो है बेटा पहले जो तौहीन की है ईसा अलैहिस्सलाम की, वो तो सुन लो। हज़रत मसीह लो जी, ये बोलता था ले सलाम ले सलाम से बताया। ले सलाम बोलने का बड़ा शौक है। जब उसकी तहरीर पढ़ो तो इनकी जान जाती है मर्जाइयों की। 9 साल हो रही और ले सलाम बोलने का इतना शौक है तो उसकी बात भी सुन लो ना। उनके घर में थे जो अपने ले सलाम की बात तो सुनो। इसके अलावा सारे अल्लाह के फजल से मर चले आजे कहता है मर जाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा। जो मौजज़ाना तौर पे अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। हाँ ठीक है। मैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गाली दी है दाफिउल बला में, तो दाफिउल बला किताब है सफा नंबर 220 है। जीसस जो है बाइबल में वो उसको इसी तरह मानते हैं, उनके अल्फाज लिखे हुए। कुरान ने इसलिए उनको हसूर नहीं कहा। उनको जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल की वजह से नहीं कहा, बाइबल के किस्सों की वजह से नहीं कहा। और है बाइबल का जीसस और है। कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को हसूर क्यों नहीं कहा?
बाइबल कुछ पढ़ भी लिया करें। बेटा कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को हसूर क्यों नहीं कहा? कुछ पढ़ भी लिया करें, कुरान का ईसा और है, बाइबल ये हजरत मसीह। अच्छा वो ठीक है, आप कहते रहो, मेरे सवाल का बेटा जवाब दे दो। कुरान ने याह्या अलैहिस्सलाम को हसूर कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कहा? इसका जवाब दो। जो टॉपिक है ना उस पे वापस आ जाएं। ये टॉपिक पे भी आते हैं, टॉपिक पे भी आते हैं। पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारे अलैहिस्सलाम ने बात कही है कि इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती। सुनो तो सही ना बेटा, उसको अलैहिस्सलाम कहते हैं उसकी बात नहीं सुनना चाहते, वो जिसको अलैहिस्सलाम कहते हैं उसकी बात भी सुनते हैं, नाम मानना उसकी बात, जो कुरान में जो ईसा यार नाम मानना उसकी बात बेचारे की सुन तो लो। और क्यों इसको मसीह मऊद बनाते हो और अलैहिस्सलाम कहते हो? अगर उसकी बात कानों में डलने नहीं देनी। अलैहिस्सलाम की बात तो सुन लो। आप फिर ताउन से भाग गए। सुनते हैं ताउन की भी बात, पहले ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की है वो तो सुनो ना। ताउन की बात मुकम्मल हो गई। कैसे मुकम्मल हो गई? ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की गई है वो सुन लो, में ये भागा है, जो उसने कहा कि कुरान ने नहीं रखा, ताउन से लोग मरे हैं, और जो तुम्हारे अलैहिस्सलाम ने वजह बयान की है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। और ट्रुथ सीकर बेटा बात तो सुन ले, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मस्जिद पुत्र गाल तो सुनो ने, और सुन के लग करना बिल्कुल नहीं आया, कुछ नहीं होने लगा। इर्द-गिर्द करीब के गांव में आया है। ओ मेरा पुत्र सुन, और सुन अपने अलैहिस्सलाम दी तहरीर सुन, फिर झाड़ू अपने अलैहिस्सलाम दी तहरीर सुन, कुछ नहीं तनु होएगा। और एक बात और सुन ले, कुछ भी नहीं होएगा बेटा। तेरे अलैहिस्सलाम ने कोई गालियां दित्तियां ने? ये जो है ना सबसे पहले अलैहिस्सलाम ने कोई गालियां दित्तियां ने? तू क्यों डरना है अलैहिस्सलाम दी तहरीर तू? मेरी बात सुन लें, एक बात छड़ी अलैहिस्सलाम ही करना है। हज़रत मसीह मौद गवर्नमेंट ने हर साल कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया ताउन, हम कंट्रोल कर गए। हज़रत मसीह मौद से कंट्रोल करने हैं पहले है जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम नु गालां कटियां ने, दा किने जवाब देना है? वो वाकई कंट्रोल नहीं हुई, और हर साल ये गवर्नमेंट कंट्रोल। मैं क्या जेड़ा अलैहिस्सलाम दी और गल तो सुन, जेड़ी अलैहिस्सलाम दी तहरीर है वो नहीं सुनते दिल करता। अच्छा ट्रुथ सीकर थोड़ी देर चुप करो, मैं वो पढ़ता हूँ तहरीर। नहीं ये भागा क्यों है? ये ताउन से क्यों भागा? बाबा अच्छा एक काम करें, और रहने दें, ये आंसर पढ़ लेते। मैं पढ़ता हूँ, मैं इतनी ऊंची आवाज से पढ़ सकता हूँ कि इसकी आवाज भी नहीं मेरे पुत्र की मैं निकलने दूंगा। अब चीखे मारो। मेरा पुत्र सुन, इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि याह्या नबी को इस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था, और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इतर मला या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम ना रखा। आखुन ले इस्लाम मेरे सामने आके आगे नु ले इस्लाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਰ ਪੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਿੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? मोहतरम तहरीर है, ये बड़ी पाक तहरीर है, बड़ी पाक तहरीर है जिहदे च ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे किया गया है कि कुरान ने मसीह मौद दी कलम तो निकली है, और ऑन कर देने उसे कलम से निकली है जिहदे च पाक तसलीस भी बयान की गई। ओए तो तुम ज्यादा पाक कलम नहीं संधी केड़ी गल है? सारे सवाल एक पाक तसलीस ओ तज़ील मराम च बयान की थी मिर्जा साहब ने। तज़ील मराम हरगिज़ दा मतलब नहीं है जेड़ा तस्वीर है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ, ਤਖਫੀਫ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ?
ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਰ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜਨ मैं फिर पढ़ने लगा हूँ ट्रुथ सीकर, मैं फिर तहरीर पढ़ने लगा हूँ, दौड़ ला जा। मैं फिर पढ़ा तहरीर, सफा ये मैं बंद नहीं किया, ये सफा खुले है, मैं तहरीर फिर पढ़नी शुरू कर देनी। ये आलम देखे जो बैठा हुआ इधर, ये बोलने नहीं देता है, ये इसकी हालत देख के बेचारे बारी है, ये गलत कर रहे हैं अमरजीत साहब। घबराया होता है, बोलने नहीं देता। अल्लामा साहब दो गलाना और पढ़ छड़िए। ये देखें हुसैनी साहब, ये अब ये देखें, आपने क्या किसी वजह से खुदा ने कुरान में याहिया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे। और फिर ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने याहिया के हाथ पर, जिसको ईसाई यूहन्ना कहते हैं, जो पीछे एलिया बनाया गया, अपने गुनाहों से तौबा की थी। ये बात सुनने में मतलब क्यों अटैक होने का खतरा है? कुछ भी तो जान क्यों जा रही है? जान क्यों जा रही है? खामोश तो हो जाए, खामोश तो हो जाए। ट्रुथ सीकर साहब को बात करने दें, उनकी बात करने। जी ट्रुथ सीकर साहब। हुसैनी साहब माइक ऑन करके एक वक्त में एक बंदे को बोलना चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि बोलने ही नहीं दिया जाता। सही बात। अच्छा, वहां पे कोई बात करने लगते हैं, मैं कोई बात करने लगता हूँ तो फौरन जनाब, अब ये है अलामा, ठीक है, ये अब जितने इधर यहाँ पे अली वाला साहब बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं बिलाल साहब, इनके गुरु हैं, इनके मास्टर हैं, लेकिन देखें कर क्या रहे हैं कि बात ही नहीं करने दे रहे अगले को। सही बात। थिंक अबाउट इट। अच्छा, हवाले इतने पकीजा हवाले ये जो पढ़ते हैं, लेकिन बीच में जो हाशिया राई करते हैं उससे बाज नहीं आते। लेकिन हवाले हम 100 दफा सुने, लेकिन भाई अगले को बात भी तो करने दो। आप हवाला पढ़ के फिर अगला कोई बात करने लगता है, भाई अगला पूछ रहा है, भाई पहले टॉपिक डिसाइड कर लें कि टॉपिक है क्या। अभी टॉपिक जिस पे बात हो रही थी उस पर बात नहीं करनी, वो इतनी सी बात नहीं करने दे रहे। सही बात, सही बात। और उसमें अब और ये देखें हुसैनी साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अब इनकी कितनी एज होगी माशाल्लाह, ठीक है? नहीं, वो एज तो बहुत ही आम बात है। मुझे अब 50 लगते हैं। जी, अब उनकी ये मेरा ख्याल है इस तरह नहीं अंदाजा नहीं करना चाहिए। साहब एक चीज गौर करें, एक बंदा इनसे अच्छा खासा छोटा बंदा, मैंने तो कई दफा ये भी देखा 30 साल छोटे, 40 साल छोटे, ठीक है, वो आए हैं अब, और ये हमारे इन बिलाल साहब के, अली वाला साहब के गुरु हैं, ठीक है, ये आए हैं, अगला बंदा कोई बात करने लगता है, इन्होंने किया माइक ऑन और अगले को बोलने तक नहीं दे रहे। सही बात है। चलिए, अब आपकी बात पूरी हो गई है। एक मिनट आलिम लोगों का काम है, ये आलिम है। हाँ जी, जी जी, इस तरह बात होती है। सही बात। मैं हैरान परेशान हूँ, इसलिए इनके लिए जो बड़ा एक अच्छा सेटअप बनाया गया है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे बोलिंग देते हैं। अभी कल बिलाल यहाँ पे इस बिलाल को भी जिस तरह ये कल बिलाल भी मुझे बोलिंग था दे रहा, बोली जा रहा है। इनके जब भी इनको जवाब मिल जाते हैं ना, तो इनकी हालत हो जाती है नाजुक, फिर वो एक किस्म की बीमारी सी हालत है। जी 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 जी, वो सिर्फ आप ही तंदुरुस्त इंसान है, बाकी सारे बीमार। असल ठहरे, अभी असल वाले की तरफ आएंगे, वो बात करेंगे। अभी जरा अगले को जवाब, अब मुझे मौका दे दे, मैं पढ़ दूंगा। उन्होंने अभी जवाब देना है। थोड़ा पानी पी ले। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके जो है ना एक ब्रॉड है ओपन आई साहब की, ठीक है, वहां पे इनके 8 इतराजात इनसे लिए गए, उसके इतने तसल्ली बस जवाब दिए जा रहे हैं माशाल्लाह कि खुदा की कसम जो है, जैसे ईमान दिल पे उतर जाता है। हज़रत मसीह जब पूरी होते हम देखते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है, खुदा की कसम, बेशक, ठीक है। और उनके जो इतराजात इन्होंने जो किए, 8 इतराजात इन्होंने भेजे वहां पे, उसमें से मेरे ख्याल पता नहीं कितने इतराज पे हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो जो है वो अब्दुल्ला आथम के बारे में जो पेशेंट हुई थी, उसका जवाब दिए गए। सहर हासिल प्रोग्राम था, 2-3 घंटे का तकरीबन था। उनको बताया गया, ये आमिर नजीर साहब को, उस वक्त आमिर नजीर साहब नीचे कमेंट्स में बैठे हुए थे, इनको बताया गया कि ऊपर आके मुनाजरे की इजाजत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये करते हैं हाशिया रही, और फिर ये इनकी हालत
खराब हो जाती है और फिर अगले को बोलने भी नहीं देते सही बात। और फिर जवाब भी नहीं देने देते और बस बोल ही जाते हैं वो इनको इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है ये कितनी दफा रेपिटेशन होगी? एक मिनट ठहरे, वो सवाल की तरफ आ रहे हैं, वो देंगे जवाब उसका जी। हाँ जी इंशाल्लाह आ जाऊंगा। हाँ जी। इतनी रिपीटेशन होती है, इतनी रिपीटेशन इनकी जैसे किस्म का दौरा पड़ गया, ठीक है। अब वहां पे जब इनको ये इस तरह की हरकतें करते हैं, हाशियाराई करते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया कि आपके साथ मुनाजरा नहीं होगा, लेकिन आप सवाल तसल्ली से लिख के साथ हवाले अटैच करके किस हवाले के बारे में सवाल है, क्या है, वो आप भेजे, ठीक है। ओपन आइज की ब्रॉड पे वो फिर उस पे प्रोग्राम शुरू हुए, जवाब दिया गया। अच्छा, जब अब्दुल्ला अथम का चल रहा था प्रोग्राम तो ये नीचे बैठे हुए थे, आमिर नजीर साहब, ठीक है। अब भाई ये जो आपने बात की है ना आखिरी, इसमें सारा आपने कवर कर लिया इसमें, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, अभी मैं देखें अभी कितनी जबरदस्त बातें पता चलेंगी। उसमें नीचे ना वहां पे ये जो आमिर नजीर साहब हैं, इन्होंने वहां पे थोड़ा जो है कहा कि मुझे बोलो ये, उनको कहा गया कि आप सवाल लिख दें कमेंट्स में, आपके सवाल का जो पेशेंट की जिसकी बात हो रही है वो नीचे लिख दें। तंग नहीं पड़ना, ये चंद मिनट में, बेशक मिनट नोट कर लें, ये बहुत थोड़े से मिनट में सारी बात कर दीजिए। नहीं, इनको अगर कहा भी होगा कि दूसरी बराडों की यहाँ पे बात ना किया करें। नहीं, ये बड़ी रेलिवेंट बात है। मैं बता रहा हूं कि हुआ क्या हुसैनी साहब, इनसे पूछो ये कहना क्या चाहते हैं। हाँ जी, ये कहना क्या चाहते हैं, ये पूछो। ये कहना ये चाहते हैं, वो बहुत ही आला बात की है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या वो आप एंड में समरी हुसैनी साहब बता देंगे, मैं बता तो हाँ अभी थोड़ा सा ना कोई 15 मिनट आधा घंटा तो सुने। तो उसमें ना वहां पे आमिर नजीर साहब नीचे बैठे हुए थे, अब्दुल्ला आथम साहब की ऊपर बातचीत चल रही थी, इतना जबरदस्त प्रोग्राम के ईमान उतर रहा था, खुदा दिल में उतर रहा था, खुदा की कसम मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। स्पीकर का ईमान बढ़ गया, पहले कम नहीं मानता, पहले बेईमान था, फिर ईमानदार। हवाले हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के, ओह माय गॉड, इतना खुदा की कसम, माय गॉड, खुदा की तरफ से भेजा नहीं, बहुत आला, बड़े आपने कवरेज दिल में ऐसे, दिल में असर। मेन बात आपने की है ना, बड़ी कमाल की, वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि जो भी यहाँ सवाल हो, किसी को कोई सवाल पैदा हो, उसका अपनी साइट पे जाके या अपनी जो प्लॉट है एक मिनट में आप सवाल लिखिए, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करें, एक मिनट बस भाई, वो कंप्लीट होने वाली है। इनको कहा गया कि आप अपनी ब्रॉड से ही ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके मुतालिक सवाल लिख दें। 8 तो इनके सवाल ले लिए गए हुए थे और उस पर प्रोग्राम होने थे, लेकिन जो प्रोग्राम हुआ है उसमें अगर मजीद सवाल हैं तो वो भेजें। यकीन 8 नहीं 10 सवाल थे, वैसे 10 सवाल थे। हाँ वो बढ़ते होंगे। इवन ओपन आई साहब इनकी प्लॉट पे गए, उन्होंने जाके कुछ सवाल लिखवाए कि यार तो आप बता दें, लेकिन वैसे ये जितने सवाल इधर उधर जाते हैं ना, हर जगह जाके ये जो है चीखे मारते हैं। इनको चाहिए हाशियाराई के लिए ना, इनको मौका चाहिए। सवाल इन्होंने भेजे ही नहीं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ओपन आई साहब गए इनके पास, यार कुछ आपने प्रोग्राम के सवाल है मुझे लिखा दें, तो उन्होंने कुछ मेरे 2 कुछ सवाल लिखवाए, ठीक है। अब ये देख लें कि पिछले इनके पास 7-8 बिल्कुल ठीक हो गया। ये जितनी बात उन्होंने तफसील से सारी समझा दी है, उसका बाकी हाल हो गए तो खाली 2 रह गए ना। हाँ जी, अब सुन तो लें। हाँ, उसके अलावा इन्होंने जो प्रोग्राम किया वहां पे और कोई सवाल ये भेज ही नहीं सके अभी तक, जाके हर ब्रॉड पे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मैंने कह रहा हूं अभी जैसे ये जो अभी पेशेंट की बात हो रही थी ताउन की, आप वो सवाल लिख के हवाला बता के प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, हाशियाराई के बगैर आप सवाल क्यों नहीं भेज रहे उधर? इसकी क्या वजह है? जितने जो मुमकिन है वो जगह जगह जाके शोर मचा रहे हैं, हाशियाराई कर रहे हैं, वहां साहब ये आपका कसूर है, आप संभालें। जी ठीक है। मैं आपको काफी चीजें इसमें से बतानी है। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि ये जो ताउन है ना, इसमें जब यानी कि किस्म का झाड़ू मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, मैं आपको झाड़ू फिरदा पे रखदा है, इंटरनेट से झाड़ू फिर गया। मौद अलैहिस्सलाम की पेशेंट गोई की वजह से आया, लेकिन हजरत मसीह मौद की पेशेंट हुई थी कि नहीं ये फैलेगा और पंजाब में फैलेगा, और इवेंचुअली वो दोबारा स्टार्ट हुआ और वो आके पंजाब में एक्सट्रीम लेवल पे गया, और गवर्नमेंट हर साल अक्सर 5, 6, 7, 8 महीने बाद वो समझती थी कि कंट्रोल हो गया,
ٹھیک ہے, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ 9 سال تک چلتا رہا اور جھاڑو پھر گیا. ایون قادیان کے قریب جگہوں پہ جو گاؤں کا دوسری جگہ ہیں ادھر جھاڑو پھر گیا, لیکن احمدیوں میں سے اکا دکا ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا, ورنہ خاص طور پہ ان کا جو گھر تھا, ٹھیک ہے, اور باغ بھی گھر کا حصہ ہے, اور جو مسجد وغیرہ اور جو ساری جو ہیں, ویسے گھر سے مراد حسینی صاحب نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی تھی کہ ان کے جو ان پہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات کی ہے. اس لحاظ سے اکا دکا سے فیملی کے علاوہ باقی جگہ جھاڑو پھر گیا, اتنا واضح فرق تھا. لیکن ادھر صرف ایک اکا دکا, اور خاص طور پہ گھر میں ایک بندے کو بیماری نہیں ہوئی, ٹھیک ہو گیا, اور پھر یہ 9 سال رہا ہے, اور ایونچولی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر کے بتایا کہ اب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ختم ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, کور ہو گیا سارا. اب میرا خیال ہے آپ تھوڑی سی رخصت دیں, میں تھوڑے سے حوالے بتا دوں آپ کو. بڑے اچھے, بہت ہی مختصر طور پر بڑی اچھی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں. تو اب حوالے اگر پڑھنے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے, اب ذرا سا رک جائیں آپ. سب سے دیکھیں جی, جو بھی سن رہے تھے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں, جو بھی آپ کے دل میں سوال آئے, جو اعتراض ہو, جو کتابوں میں ہو, کچھ بھی ہو, یہاں آئے یا گھر میں آئے, اس میں آپ نے اوپن آئی کو یاد رکھنا ہے. یہ ساری باتیں اوپن آئی سے جا کے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس پروگرام میں دیکھیں نا, ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, جواب 3-4 گھنٹے کا. بس چپ کر جاؤ, ان کو بات کرنے دو, مہربانی کر دو. یہ چیز حسین صاحب امپورٹنٹ ہے کہ جو جواب ہوتا ہے نا وہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, جیسے ابھی میں جواب دینے لگا ہوں, ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے تو ان کی حالت نازک ہو رہی ہے. مہربانی کر دے یار, تم بہت سمجھدار ہو, بڑے علم والے ہو, ہمارے اوپر رحم کر دو, ہمارے اوپر رحم کر دو. یہ حوالے پڑھنے کے لیے مجھے تم سے رحم کے خواستگار ہیں. نہیں تو پھر جواب کیسے ملے گا؟ تم مہربانی کر دو, تم گھر جا کے جواب حوالے نہ پڑھے تو جواب کیسے, گھر جا کے جواب پڑھو جا کے. نہیں, مجھے تم سے جواب مانگا ہی نہیں ہے, کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے ہمیں سارے جواب خود ہی پتہ ہے, وہ پراپر چینل ہے, اس لیے تو میں نے کہا ہے وہاں پہ گھنٹے لگا کے پراپر جواب دیے جائیں. بھائی مہربانی کر دو, سارا کچھ ریکارڈ ہوا ہے, جس نے پڑھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کر لے گا. ایون طارق چوہان ہماری کیوں سر کھا رہے ہو؟ طارق چوہان صاحب نے بھی پروگرام سٹارٹ کیا ہے صفی آپا کے ساتھ, وہ بھی اچھا ہے. انہوں نے بھی عامر نذیر کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے ہیں. ان کو بھی جو ان کا بھی پروگرام تھا, میں نے وہ دیکھا تھا, وہ بھی یوٹیوب چینل ہے, ان کا نام ہے ٹروتھ سرچر 786, یوٹیوب کا چینل ہے, اس پر انہوں نے اپلوڈ کیا پروگرام, وہ بھی گھنٹوں کا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جواب دینے میں چاہیے ہوتا ہے ٹائم. آپ دیکھیں نا, میں نے اب بھی حوالے پڑھنے تھے, ٹھیک ہے, لیکن حسینی صاحب نے نہیں نا جو ہے, مہربانی کر دو, اب مہربانی کر دو, میں کہہ رہا ہوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جواب دینے کے لیے حوالے پڑھنے ہوتے ہیں. بھائی نہیں تم سے سوال کیا کوئی, تو پھر پراپر چینل جائے نا. ہاں تو سوال تم سے کیا ہی نہیں کوئی, میں جواب دینا چاہتے ہو خام خواہ. نہیں سوال کیا ہم نے تم سے کوئی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مہربانی کر دو. طارق چوہان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اعتراض ہوتا ہے, جواب میں گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. وہی بات ریپیٹ کر رہے ہو بس تم. ہاں تو میں اگر میں یہاں پہ حوالے پڑھوں گا, مجھے گھنٹے آنی چاہیے, گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹائم. تمہیں کون کہہ رہا پڑھو, ہم نے تم سے سوال پوچھا. پرابلم ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اوپن آئیز کے پروگرام میں آئے نا. ہاں تو ٹھیک ہے, سن لی بات, ختم ہو گئی, جس نے جانا ہوگا چلا جائے گا. ادھر ادھر شور مچانے کی بس کر دو اب. تو پھر انکل کیوں شور مچا رہے ہیں ادھر؟ او بھائی بس کر دے بھائی, مہربانی کر. انکل کیوں شور مچا رہے ہیں جب ان کے لیے اسپیشل وہ پلیٹ فارم بنایا گیا ہے؟ بات سنیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, پر وہ اپنا اعتراض یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں, یہاں ڈیبیٹ ہے, کوئی بات نہیں. لیکن نا رانا صاحب, پرابلم یہ ہے نا, ابھی دیکھیں میں ان کے اعتراض, رانا صاحب کا ہن پھر جواب شروع ہو جائے. نہیں دیکھیں رانا صاحب, ابھی انہوں نے اعتراض کیا نا, چھوٹا سا دے دیتا ہوں جواب, چھوٹا سا. نہیں چھوٹا نہیں, رانا صاحب بات, رانا صاحب پہلے ایک بات تو سن لیں. انہوں نے ابھی ایک سوال کیا ہے نا, میں جواب دے رہا تھا. اب میں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں یہاں پہ وہ جو حوالے ہیں, تاکہ تسلی بس جواب دیا جائے. وہ جواب دینے کے لیے میری بات سنیں, حسینی صاحب نے کہا کہ اتنا ٹائم آپ کو نہیں دیا جا سکتا. طارق صاحب نے بھی کہا, نہیں سن لیں, میری بات مان لیں, ایک بات سن لیں بس. رانا صاحب لیکن ایک چھوٹی سی بات پہلے میری سن لیں. اس نے نہیں سننی بھائی, اس نے نہیں سننی کسی کی. بس ایک میری بات سن کے میں خاموش ہو جاؤں. نہیں اس نے نہیں سننی. ایک منٹ, اس نے نہیں سننی, اس نے نہیں سننی. ایک منٹ میرے بھائی, آپ نہیں سننی, اس نے نہیں سننی. نہ سنیں, آپ چپ ہو جائیں. ٹروتھ سیکر بولے گا. آپ ایسا کریں, ہم نا امن نذیر صاحب کو موقع دیتے ہیں, پورا منٹ لگا دیں گے. حسینی صاحب وہ سارے حوالے پڑھ کے, آپ اتنی دیر میں ریسرچ کر کے میری بات سنیں, اتنا ہی ٹائم حسینی بھائی آپ کو دے دیں گے. آپ اپنا ان میں جواب
حوالے پڑھ دیں جو آپ کا دل کرے، پہلے ان کو اعتراض کر لینے دیں، پھر اس اعتراض کے مطابق آپ اپنے حوالے تیار نہیں رانا صاحب میری بات سنیں، انہوں نے فرصت ہے کسے آپ جواب دے دیجیے رانا صاحب، انہوں نے اعتراض پس منظر اعتراض کا جواب دینے کے لیے دوبارہ کر لینے دیں کوئی بات کیوں خواب طرب لیکن حاشیہ رائی کو نہیں لاؤ کریں گے نا آپ کرنے دیں انہیں ٹائم میں کرنے دیں، چلے ٹائم میں کرنے دیں آپ